Good morning, student. Now we are going to move forward with our next topic, formation of a joint stock company. So what are we going to learn? Here we are going to learn about the that how this joint stock company or a company is been formed. So what are the stages of it? So there are basically four stages that are promotion, incorporation, capital subscription stage, commencement of business. So promotion is a stage wherein you just analyze the market conditions and what will be the requirement of your production process, capital availability and all. So this will be discussed in promotion. Okay, because before starting a business we'll have to analyze each and everything. We cannot directly put in the money and start a business. We need a proper idea and we will have to find out whether that particular idea is feasible or not, practically possible, is the possibility is there or not. Okay, now second is incorporation. Incorporation means when the registrar of the company writes the name of the company in his register after submitting the documents such as memorandum of association, article of association and prospectus, and also all these documents will be submitted to the registrar. Then only he is satisfied, then he will be providing you the certificate of incorporation, means your name is written in the register. Your name is the name of the company is written in the register's book. Okay, so what this registrar, who is this registrar? See, the registrar is the person who writes the name of the company in the registers of the company. So in every state there is a registrar of companies, so he's going to write the name of your company. If you are, suppose if you are forming your company in Madhya Pradesh, then you'll have to go to such a kind of registrar and then you'll have to submit the documents. And if he is convinced with your documents, then he will provide you incorporation letter. Okay, then the third is capital subscription state. Here the company will be arranging the capital money which is required for the business. So that is also kind of process. Okay, now the last one is commencement of business, the point from where the business will start. So that letter is called as commencement of business. From this date, on the date on which this commencement of business letter is provided to you, you can start your activities from that day, or you can start dealing in the name of the company. So this is possible only in the case of public limited company, because we are learning here joint stock company. So this is nothing but this limited company where the share will be issued in the public. This is not, here they will not talk about any kind of private companies. Private companies are something else, okay, which we have already discussed earlier. So here for the private company, after incorporation letter, this one only they can start their business activity. But for this joint stock company or public limited company, they will have to wait for commencement of a commencement letter of business. Okay, now let us discuss one by one. So the promotion stage. So what is this promotion stage? Means the very beginning stage. So promotion stage include all the steps right from the conception of the idea to starting point of the company till it is formed. So it is just kind of all the, it includes all those steps right from the beginning to the end, like from where they are starting from the very beginning when some idea is struck in the mind of the businessman, from there till its formation, means the company is formed. So till that this process called as promotion. So here the promoter or a businessman, he's just thinking about his particular company, that how to be formed. Then he is just bringing that idea into real form, into reality. Okay, वो एक असलियत में उसको बनाना चाहता है. अभी सोच रहे हैं हम ऐसी कंपनी डालेंगे, बट लेटर ऑन वो क्या सोच रहा है कि उसको पूरा कैरी आउट करते करते चेक करते कि ये पॉसिबल है कि नहीं, वो क्या करेगा, कंपनी को फॉर्म करेगा. तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस अंडर दिस प्रमोशन स्टेज. Now it is a process of planning and organizing all the resources required to form a company. Okay, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है, बिजनेसमैन. ओके, और वो सोचा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस कंपनी को बनाने के लिए. अभी वो बना नहीं रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है एक आइडिया के बारे में. द प्रमोशन वॉज द discovery of business idea, its investigation, assembling necessary resources to set up the business. Now this idea which has struck in the mind of the promoter, वो क्या करेगा, इस आइडिया को रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा और रिसोर्सेज के बारे में सोच रहा है कि what are the resources will be required. Suppose you are planning to make some kind of liquid hand wash, then what will be the raw material, whether those raw material will be provided here or not.
Okay, so here the person who performs all this activity during the promotion stage is called as promoter or a businessman. So this is the responsibility of the promoter. Okay, in other word we can call him as an entrepreneur also. You know, so entrepreneur is also a person who is also called a promoter, the person who is setting up the business. Okay, who's having this idea of setting up a business, he is called as the promoter. तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करेगा, ये प्रमोटर ही करेगा. नाउ द प्रमोटर परफॉर्म द वेरियस फंक्शन. तो ये प्रमोटर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, उसको क्या करना है. द फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केट में जब भी आपको कुछ मौका दिखता है जहाँ पे आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जोमेटो वी हैव सीन दिस, दैट लोगों को शायद यहाँ पर खाने की ज़रूरत रहती है, वो कई बार शॉप तक नहीं आ पाते, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं, और उसको ग्रैब किया. जोमेटो and all this kind of Uber companies, like they are providing cab facility, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह स्टक हो जाते हो wherein you will not find any kind of taxi, and also Uber is there to solve this problem. So all these kind of things are business opportunity. ये एक मौका है जो कि एक प्रमोटर ऑक्यूपाई करता है. So the promotion stage begin with the discovery of an idea to set up a business. It can be an idea to set up a new business or an idea to expand the existing business. ओके, तो यहाँ पे बिजनेस क्या हो सकता है, एक नया आइडिया भी हो सकता है लाइक इन द केस ऑफ जोमेटो, और इट कैन बी एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन आइडिया, जो आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो, उसके बारे में भी हो सकता है. Now the promoter identifies the profitability of the idea by analyzing the opportunity available in that area. The promoter also analyzes the various resources required, amount of capital and the degree of risk involved. अब यहाँ पर जब एक्सपेंशन की बात आती है बिजनेस की, तो हो सकता है कि जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो, लाइक अपन मध्य प्रदेश में कंपनी डाल के बैठे हुए सपोज, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हमको अगर ऐसा लगता है कि और प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च किए जाए तो पीपल विल परचेज. लाइक इन द केस ऑफ पतंजलि, इन द बिगनिंग दे वर कमिंग विथ वेरी फ्यू प्रोडक्ट. पतंजलि प्रोडक्ट सब जानते हैं, स्टार्टिंग में बहुत थोड़े प्रोडक्ट थे, फिर क्या हुआ बाद में एकदम से ज़्यादा क्यों आ गया, उसने एक्सपैंड किया बिजनेस को, तो अपॉर्चुनिटी उसको दिखी, ऐसा लगा उसको कि लोग प्रीफर कर रहे हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऑल दिस हर्बल प्रोडक्ट, लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है प्रोडक्ट, सो दे विल बी बाइंग. तो जैसे ही आइडिया लगा तो उन्होंने और फिर सोचा कि क्या क्या बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया. तो ये एक एक्सपेंशन की एक आइडिया ही आया होगा ना उनके माइंड में भी, और किस तरह से क्या प्रोडक्ट उनकी डिमांड है उसको एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर द प्रमोटर एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. अब रिसोर्सेज क्या चाहिए रहता है, देखो पैसा चाहिए, लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब रिसोर्सेज होते हैं. एक कंपनी आप सेट कर रहे हो, मशीनरी चाहिए होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिसोर्सेज विच यू विल रिक्वायर, या फिर और यू कैन से अ प्रमोटर विल रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस. Now the capital is also the most important thing and the risk. See, capital कितना लगना चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी. देखो पैसा ही होता है. ओके, ऑलवेज वी टॉक कि हम इतने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, बट व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी इन द बिजनेस, इसको बोलते हैं कैपिटल. मनी का नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, कैपिटल बोलने लगते हैं, क्योंकि इस पैसे को अपन बिजनेस में लगाएंगे. अब इन्वेस्टमेंट किस में होगा, या तो रॉ मटेरियल में होगा या फिर मशीनरी में होगा, तो यही होता है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बाकी तो फिर एम्प्लॉय को रख के अपन क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं ना प्रॉफिट में से, तो वो चीज़ अलग होती है. इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं, और इसी को पैसा जो आपने लगा दिया उसको क्या क्या अपन बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं कैपिटल. ठीक है, ओके. नाउ द डिग्री ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, ये बहुत जानना जरूरी है. अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो उसमें रिस्क कितना है, और कंपेटिटर मार्केट में कितने हैं, हमको कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है. और रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हो सकता है आपका बिजनेस अगर बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करता है प्रमोटर. नाउ सेकंड इज फिजिबल स्टडीज. सो आफ्टर एनालिसिंग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पर फिजिबल स्टडी में क्या करेगा, वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, और क्या करेगा, अपने आइडिया को एक प्रैक्टिकल रूप देगा. मतलब रियली अब उसको स्टैब्लिश करने की बात आ रही है, अब वो उस आइडिया पे और आगे जा रहा है. ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एसेट्रा. यहाँ तक इसको करना है. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो क्या चेक कर रहा है, प्रैक्टिकल शेप दे रहा है आइडिया का, तो उसको क्या चेक करना है, प्रॉफिटेबिलिटी, कि फायदा कितना होगा, फायदा होगा तो खर्च कितना होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट. सो कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है और फायदा कम है तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, राइट. सो इन दिस केस प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो प्रोडक्शन प्रोसेस वो होती है जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल, तो देखना पड़ेगा कि ये वाकई आपको अवेलेबल है कि नहीं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो रही है.
नॉट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू आर मेकिंग समथिंग देयर मस्ट बी डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, जो भी पैसा हमने इस प्रोडक्ट में लगाया वो सब बर्बाद हो जाएगा, इट विल ऑल गो इनटू डिस्ट्रक्शन। तो ये जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पहले हमको डिमांड अच्छे से एनालाइज करनी आनी चाहिए। ओके, now sorry, while doing this the promoter take the shape help of the experts and specialists like chartered accountant, engineers, etc. अब सी इतनी फिजिबल स्टडीज की बात चल रही है तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट ओपिनियंस रहती है वो लेनी पड़ती है। सो यू मे हायर द सर्विसेज ऑफ द मैकेनिकल engineers and different types of engineer. If you are setting up a chemical factory then you will have to take help of chemical engineers or mechanical engineers. और साथ ही साथ आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़नी चाहिए, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेल यू कि कितना कॉस्ट कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद क्या होगा, वो डिटेल सब कलेक्ट कर लेगा और फिर वो बिजनेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा यहाँ पे। ओके, नाउ द टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब इसके जो पार्ट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वन मोर इज देयर, तो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। व्हाट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी? So see, technical feasibility means very it may be due to the non-availability of raw material inputs, technology, etc. So because कभी कभी आइडिया पॉसिबल नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द टेक्निकल फिजिबिलिटी इज नॉट देयर, मीन्स रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकता, या फिर जो टेक्नोलॉजी विच यू रिक्वायर इन योर बिजनेस इज नॉट प्रेजेंट इन योर country, and or maybe possible import is not possible, so you cannot set up such a kind of business in which no technical feasibility is there. ओके, तो यहाँ पर अगर आप नहीं करना चाहते हो बिजनेस और उसके बाद में आप देख रहे हो कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है, फिजिबिलिटी नहीं है, लाइक आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बाहर से नहीं आ पाएगा, बैन है अपना हमारी कंट्री में, तो फिर ऐसा कुछ अगर सिचुएशन है तो देन आप बिजनेस वो तो नहीं लगा सकते हो। देन फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसे का अरेंजमेंट, तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होना चाहिए। सो इफ द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फंड ऑफ द बिजनेस आइडिया सो लार्ज दैट दीज आर कैन नॉट बी अरेंज विद इन अवेलेबल मीन्स। कभी कभी पैसा इतना ज़्यादा हो जो लगता है बिजनेस में, और जो प्रमोटर है ही विल स्टेप बैक, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा वो शायद अरेंज नहीं कर पाएगा। समटाइम इट हैपन्स कि इतना ज़्यादा पैसा अरेंज नहीं कर सकता, तो पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं होती है। ओके, लाइक एग्जांपल इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल वन में है आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल area, but the funds required to carry out this idea are so huge that it cannot be converted into action plan. ओके, अब यहाँ पर एक आइडिया दिख गया कि कोई है जो कि रूरल एरिया को अर्बनाइज करना चाहता है, फंड्स उसके पास इतने ज़्यादा है नहीं, तो फिर फंडिंग की प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ पे बात क्या है, देखो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, दैट यू मस्ट हैव दोस सच काइंड ऑफ कैपिटल विच शुड बी अरेंज इजीली। मतलब अगर आप प्लानिंग करो, सपोज वी आर प्लानिंग टू मेक सोप कंपनी और डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देन इनफ कैपिटल शुड बी अरेंज बाय द बैंक्स और सम सोर्सेस सो दैट वी कैन स्टार्ट द बिजनेस। अगर नहीं हो सकता तो फिर उसको हम सेटअप नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है और रेंज के ही बाहर है तो वी कैन नॉट डू इट। दैट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब थोड़ा कॉस्टिंग कम आना और प्रॉफिट ज़्यादा आना, तो इकोनॉमिकल होता है। तो यहाँ पर समटाइम अ प्रोजेक्ट इज अबेंडेंड, त्याग दिया जाता है जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। अगर किसी में प्रॉफिट नहीं है, आपको दिख रहा है कि इतना ज़्यादा रिस्क उठाकर भी ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे हो, तो डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रमोटर। अगर प्रमोटर को लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, रिस्क तो है बट प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट टू मच, तो वो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा आइडिया को। नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट इज नेम अप्रूवल। नेम अप्रूव होना मतलब जो भी कंपनी का नाम लिखा है ना, हमने जो भी सोचा है उसको अप्रूवल मिल जाना कि हाँ ये चलेगा, ये नाम चलेगा आपकी कंपनी, इट इज लाइक दैट। ओके, सो टू कंपनीज कैन नॉट हैव द आइडेंटिकल नेम, मतलब दो कंपनियों का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। लाइक मैंने बोला प्यूमा, तो प्यूमा, और मैंने एक और मैंने भी वही नाम सोचा, प्यूमा शूज की कंपनी डालेंगे अपन। ओके, नाउ इन दिस केस प्यूमा PUMA एंड आई एम राइटिंग PUUMA, so this is my company. Now what will happen, the when this registrar is going to check the name, he will say that it sounds similar, so neither this word should be similar, ना तो word similar होना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल नेम सिमिलर होना चाहिए। ओके, बिल्कुल, तो ये अलाउड नहीं है, साउंड में भी नहीं होना चाहिए। लाइक POOMA, तो POOMA इज ऑल्सो पोमा, तो साउंड सिमिलर कर रहा है, तो इसमें स्पेलिंग अलग है बट इट साउंड सिमिलर, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो इट मस्ट नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स।
So it is necessary for company to get its name approved from the registrar so that it does not match with any other company name. Okay, तो यहाँ पर नेम जो रहेगा बिल्कुल दूसरी कंपनी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ही आपको रजिस्ट्रार अप्रूवल देगा उस पर्टिकुलर नेम के लिए, अदरवाइज आपको चेंज करने का बोलेगा। और आपको इन फ्रंट लाइक अप फ्रंट पे कुछ नाम देने पड़ते हैं, यू विल हैव टू सजेस्ट सम नेम टू द रजिस्ट्रार दैट 4-5 names or 10 names you can give him that these are the names which we want to keep फॉर अ कंपनी। सो यू जस्ट चेक इट एंड लेट अस नो कि कौन सा आप कर सकते हो हमको, तो वो चीज़ वो रजिस्ट्रार बताएगा कि ये नाम आप रख सकते हो, ये मैच नहीं हो रहा है, नया नाम है। दिस इज हाउ द नेम अप्रूवल विल बी गिवन। देन फिक्सिंग अप सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिग्नेटरीज कौन रहते हैं, देखो साइन करने वालों को बोलते हैं। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर हम कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु आर गोइंग टू राइट। तो यहाँ पर जो भी सिग्नेचर करेंगे किस पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, तो वो बन जाएंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। साथ ही साथ प्रमोटर को एक रिटर्न कंसेंट भी लेनी है डायरेक्टर की, और उनको बोलना पड़ेगा कि आपको क्वालिफिकेशन शेयर बाय करने पड़ेंगे। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन शेयर? सी, जब आप सोचते हो कि कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनोगे तो यूं ही नहीं बन जाते। यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी इन द बिजनेस, फॉर दैट यू विल हैव टू परचेज सम शेयर्स ऑफ दोस कंपनीज टू बिकम क्वालिफाइड डायरेक्टर। क्वालिफाइड मतलब कि वो व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और वो क्वालिफाइड होता है, वो एक डायरेक्टर बन सकता है उस कंपनी का। बगैर पैसा दिए, बगैर इन्वेस्ट किए वो शेयर खरीदे, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो क्वालिफाइड मतलब वो कब होते हो आप क्वालिफाइड, जब आप वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो जितना वहाँ पे बोला गया है, और साइन करते हो किस पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। ओके, नाउ आफ्टर दिस appointment of professionals, after this we are going to appoint द प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल कौन होते हैं? प्रोफेशन होते हैं ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, सी जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है लाइक सॉलिसिटर्स, ब्रोकर्स, तो ब्रोकर अंडर राइटर कब काम आते हैं? दीज आर द पीपल हु आर इंडल्ज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। शेयर को खरीदना बेचना, ये काम किसका रहता है? ब्रोकर्स का। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है लाइक शेर खान लिमिटेड हो गई, या फिर इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड हो गई, कार्वी एक कंपनी है, कार्वी फिनोपोलिस ये एक कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल हो गया। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि काम करती हैं किसका, ब्रोकर का भी, अंडर राइटर का भी। तो ब्रोकर क्या होता है, बस बाय सेल करता है शेयर का कमीशन बेसिस पे। अंडर राइटर कौन होता है, अगर कंपनी के शेयर हो सकता है थोड़े परचेज करे और कुछ नहीं कर पाए, तो वो गारंटी लेते हैं कि हम वो शेयर को खरीद लेंगे और उसके लिए आप हमको कमीशन पे करना, उसका नाम होगा अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो अगर आपके शेयर पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुए, कुछ पैसा बच गया, तो अंडर राइटर वो जो भी पार्ट बच गया उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है, वो शेयर खरीद लेता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर, है ना। तो ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स पीपल हैं जो कि आपकी कंपनी के शेयर लोगों में सेल करने में हेल्प करेंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सॉलिसिटर यानी कि जो लॉयर्स होते हैं उनकी सर्विसेज भी लेना पड़ती है। सो वाई दे आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। जो भी लीगल मैटर्स है, कानून से की कानून के अकॉर्डिंग आप चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंप्लायंस हैज टू बी देयर। जो भी कानून है उसके मुताबिक आपको चलना है। तो ये जो व्यक्ति है, ये सॉलिसिटर यही काम करता है, ही इज एक्चुअली एक्सपर्ट ऑफ इट। तो आपको गाइड करता है कि आप लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं। नाउ बैंकर्स आर अपॉइंटेड। अब बैंकर्स को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है? सी, ऐसा तो होगा नहीं कि आप शेयर बेच रहे हो पब्लिक में तो पब्लिक सीधा उठ के आपकी कंपनी में आके पैसा दे के जाएगी, नहीं। कोई कलेक्शन एजेंट होना चाहिए जो आपका पैसा कलेक्ट करेगा। सपोज कोई बैंक अपन ने अपॉइंट कर रखा है, या फिर आपका जो कंसर्न ब्रोकर है, या तो वो आपसे पैसा लेगा और वो वहाँ तक पहुँचाएगा, ये तरीका हो सकता है। या फिर कोई कंसर्न बैंक होगा। कौन सा बैंक होगा? देखो, जब आपको पैसा रिसीव होगा तो आपकी कंपनी का कोई तो बैंक होगा ना, कहीं तो आपका करंट अकाउंट वगैरह आपको ओपन कराना है, तो वो कलेक्शन का काम करेगा। उसी के लिए हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स में ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, ओके। सो ऑल दिस मैटर ऑफ टेकिंग मनी, रिसीविंग, रिटर्निंग बैक टू द शेयर होल्डर्स, ऑल दिस टेकन केयर बाय सम बैंक विच विल बी अपॉइंटेड। तो बैंकर को भी यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से? देर आर टू डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम्स। द डॉक्यूमेंट्स आर memorandum of association, article of association, and prospectus. These are the three basic documents which we are going to discuss later on in this chapter.
तो ये डॉक्यूमेंट उसको प्रिपेयर करने पड़ेंगे प्रमोटर्स को। ओके, और वहाँ पे बताना पड़ता है कि ये इसमें कि आपकी कंपनी कैसे रहेगी, क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिस एड्रेस, ये सब इसमें मेंशन करना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है ये एक इंटरनल मैनेजमेंट रहता है कंपनी का, उसको कैसे आप कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट करोगे उसके बारे में रहता है। और प्रोस्पेक्टस क्या रहता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब आप शेयर बेचने की बात करते हो पब्लिक में। ओके, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश करना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस, विच इज नथिंग विच वर्क्स लाइक अ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द शेयर्स इन द पब्लिक में जाएगा, पब्लिक उसको पढ़ेगी डॉक्यूमेंट को, उसको लगेगा बहुत ही अच्छा है प्रोस्पेक्टस, काफ़ी अच्छे पोटेंशियल दिख रहे हैं कंपनी के फ्यूचर में, बहुत अच्छा करेगी, तो अपन उसको परचेस करते हैं उसके शेयर्स को। ओके, तो ये प्रोस्पेक्टस इसलिए बनता है क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी के लिए क्या अपन ने पढ़ा था कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कितना भी पैसा रिक्वायरमेंट वो उसका हो सकता है। तो क्या करेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, पब्लिक में भेजेंगे, और फिर क्या होगा, पब्लिक परचेज करेगी शेयर, तभी पैसा ज़्यादा आएगा उनके पास। ठीक है, नाउ द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। नाउ व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? इन दिस स्टेज द कंपनी इज द सेकंड स्टेज इन द फॉर्मेशन। अब ये सेकंड स्टेज हो रही है, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेट करना मतलब कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखना, ये चीज समझ लो थोड़ा, व्हाट डज इट मीन, व्हेन द रजिस्ट्रार राइट द नेम ऑफ द कंपनी इन द कंपनीज ऑफ रजिस्टर्स, तो आपकी कंपनी उस दिन, जिस दिन भी आपके कंपनी का नाम उस रजिस्टर में लिख दिया रजिस्ट्रार ने, तो दैट विल बी द डे कि आपकी कंपनी पैदा हो गई है, बॉर्न हो गई है, या फिर क्रिएट हो गई है, बन जाना, कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस आ जाना। तो वही होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आपको जरूरी डॉक्यूमेंट भरकर देने पड़ेंगे। व्हाट आर दिस डॉक्यूमेंट्स? सी, फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कि कितना पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में कितना कैपिटल आप इशू करोगे, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना रहेगा, उससे ज़्यादा के शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, वही होता है ऑथराइज कैपिटल। ओके, मेमोरेंडम क्या होता है, वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के रहते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है, ये इंटरनल मैनेजमेंट का बारे में होता है कंपनी के, ये डिस्कस करेंगे बाद में। A list of directors with the name, address and occupation. Now here the list of the directors जाएगी, उसकी नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या है उनका, और उनकी एज क्या है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन रहती है जो आपको देना पड़ता है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। The written consent of the director to act as director. So whoever wants to become the director of the company, he will have to give his consent, उसकी राय जो है उसके बारे में, क्यों रेडी है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के उसमें। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिटन कंसेंट चाहिए उसकी, सिर्फ क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय कर लेने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, ही विल हैव टू गिव हिज कंसेंट, उसकी राय देनी पड़ेगी। नाउ नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, लाइक इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आर इन मुंबई, सो दे आर द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कहाँ से आप करोगे, आपके ब्रांच ऑफिस वगैरह उसका भी नेम यहाँ पे देना पड़ता है, हेड ऑफिस के साथ ब्रांचेस है तो उसका भी। नाउ अ स्टेटरी डिक्लेरेशन stating all the formalities related to the formation ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। जब आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ, हमने मेमोरेंडम भर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनका कंसेंट ले लिया है, कुछ भी पैसा हमारे पास पेंडिंग नहीं है, शेयर होल्डर्स का अलॉटमेंट हमने कर दिया है लोगों का, ये सब एक डिक्लेरेशन में देखते हैं। जैसे कि हमने जो जो काम कर दिए ना उसका डिक्लेरेशन दे दो कि हमने ये काम कर दिए जो जो आपने कहा था, और हम साइन करके दे रहे हैं सब इस पे। तो ये होता है क्या, एक नेसेसरी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है इन रिटर्न फॉर्म कि आपने क्या क्या कर लिया है। नाउ द सेकंड पॉइंट, आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ द फीस। आप रजिस्टर कर रहे हो कंपनी तो फीस तो देनी पड़ेगी, रिमेंबर दिस, यू विल हैव टू पे द फीस। सो अलॉन्ग विद दिस फाइलिंग ऑफ द अबाउट डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट जो थे मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यही डॉक्यूमेंट थे, बाकी सब उसी के अंदर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हम, है ना, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक फॉर्म भरते हो ना कॉलेज का या स्कूल का, उसमें डॉक्यूमेंट्स में आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, आपका एड्रेस वगैरह वैसे ही करते हैं वो फॉर्म में, ठीक है। और उसके साथ में जो भी आपका एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी वगैरह, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। Now, the prescribed fees of the registrant has to be deposited. So whenever you will make the company, what you have to do? ओके, नाउ ये फीस कितनी ज़्यादा लगेगी, देखो पेमेंट ऑफ द फीस किस पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा आपका ऑथोराइज कैपिटल है, जितना ज़्यादा आप कंपनी के लाइफ टाइम में शेयर इशू करने की बात करो तो फीस उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ फीस आपको करनी पड़ेगी जब आप रजिस्टर करोगे कंपनी को। नाउ दिस रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड ऑल्सो चेक द रिसीट ऑफ द फी डिपॉजिट। अब वो रजिस्टर जो रजिस्ट्रार है, जो कि पर्सन है, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि भाई फीस भर दी है कि नहीं आपने, रजिस्ट्रेशन फीस है ना। अगर वो फीस आपने भर दी है तो फिर वो क्या चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया उसको वेरीफाई करेगा। मीन्स ही इज गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक एड्रेस प्रूफ मिसिंग है, तो बोलेगा इसका एड्रेस प्रूफ आप लेकर आओ, तो वो वेरीफाई करेगा उसको। तो इस तरह से आपको गाइड करता है। नाउ दिस इज if he is satisfied with the validity and authenticity of the document submitted, then register enter the name of the company in this register। तो कब रजिस्टर करेगा, मतलब कब अपनी रजिस्टर में अपनी आपकी कंपनी का नाम लिखेगा, he is going to write only when he is convinced that each and every information is been furnished to him। so जब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको फर्निश कर दोगे, दे दोगे जानकारी या डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो कन्विंस हो जाता है, फिर वो आपकी कंपनी का नाम क्या करता है, रजिस्टर कर लेता है। फिर वो आपको क्या देता है बाद में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और यही हमारा टॉपिक था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन कैसे हो रहा है, अब वो हमको एक कन्विंस हो गया ना, तो वो एक सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन दिस रजिस्टर, द रजिस्टर इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब उस दिन आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है, बन गई है। ओके, ये बस इतना ही है। और इसको आपकी कंपनी को क्या मिल जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, कि आप एक अलग एंटिटी के रूप में जाने जाओगे। आप कंपनी एक नाम से जानी जाएगी और उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस आ जाता है, वो डील कर सकती है दूसरे लोगों के साथ में अपनी नाम में। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कल भी, लाइक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, आप टेलीविजन खरीद के लाए तो इनवॉइस पे किसका नाम लिखा रहता है, इट इज नॉट द नेम ऑफ बिजनेसमैन, इट विल बी द नेम ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन जिसको एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया, और वो आपके साथ डील कर रहा है, ना कि बिजनेसमैन। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट टू फाइल केस अगेंस्ट और अगेंस्ट सच ए कंपनी, तो जो भी होगा उस कंपनी के नाम पे होगा। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको एक इंसान जैसा ट्रीट करो आप। तो ऐसी लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाती है। और दिस इज अ स्पेसिफिन, ये एक फॉर्मेट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। तो क्या लिखा है, आई हियर बाय, इसको याद नहीं करना है, आपको बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ देख लो कैसा होता है। आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द नेम, यहाँ पे कोई नेम लिख देते हैं, एक्स वाई जेड या एक्स जी, कंपनी का नाम लिख देते हैं, नेम ऑफ द कंपनी इज द डे incorporated under the company act 1956 and the company is limited, लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड, शेयर इशू रहेंगे इसके पब्लिक में, अंडर द हेड एंड एट दिल्ली, दिल्ली में दिया जा रहा है एट 24th डे ऑफ अगस्त 2012। ये जो डेट इसमें लिखी हुई रहती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डेट का भी मेंशन है यहाँ पर, उस डेट को ही मान लिया जाएगा कि आपकी कंपनी यहाँ पर क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। और वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिर आपने जिस दिन इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो उसके बाद जो भी डील कर रहे हो आप, ठीक है, उसको लीगल माना जाएगा, क्योंकि कंपनी बन चुकी है यहाँ पर आपकी। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सी कंपनी तो बॉर्न हो जाती है जिस डेट पे जो उस पे प्रिंटेड है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे उसके बारे में लिखा है। तो कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन ओनली आफ्टर दिस डेट। The certificate of incorporation is conclusive evidence of the legal existence of the company। तो जिस तारीख को मेंशन किया जाता है सर्टिफिकेट के ऊपर, उस दिन आपकी कंपनी बन चुकी है, उसके बाद आप जो भी डीलिंग करोगे वो लीगल होगी, ये लोग ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नाउ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन 24th अगस्त। कब इशू किया गया उसको, मान लो 24th अगस्त पे इशू किया गया उसको। वेयर इज द डेट, मतलब दिया गया, इशू किया गया आपको, इशू करना मतलब दिया गया आपको, किस डेट को दिया, 24th का। ठीक है, ऑन द सर्टिफिकेट, बट द डेट वॉज रिटर्न ऑन इट 22nd अगस्त। पर उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी है वो कितनी है, 22nd लिखी हुई है। तो उसी दिन आपकी कंपनी बॉर्न हो गई, क्रिएट हो गई, बन गई, लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई। तो 23 को अगर आप कोई डीलिंग करते हो किसी के साथ में भी, तो उसको लीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज उसका मतलब कब इशू किया उससे कोई मतलब नहीं है, जो तारीख सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है वो ही फाइनलाइज हो जाती है। ओके, उसको बोला जाता है। नाउ आफ्टर दिस द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मतलब कैसे पैसे को आप अरेंज करोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होती है, ओके, उसके बारे में। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज यानी कि फाइनेंस अरेंज करना। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना।
सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। जहां पर आप जब भी शेयर बेचने की बात करते हो, लोगों से पैसा लेने की बात करते हो, क्योंकि शेयर इशू करके पैसा आता है कंपनी के पास बहुत सारा है, ठीक है। तो ऐसा है कि दूसरों का पैसा आप अपनी कंपनी में यूज कर रहे हो और उनको शेयर बेच देते हो। उनको वो जो शेयर खरीदेंगे उनको बोलोगे आप शेयर होल्डर है। वो लोग कौन है? शेयर होल्डर। और एक्चुअली वो लोग ओनर भी कहलाते हैं। एक्चुअली कंट्रोल रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। एक्चुअली समझो इस बात को, वही कंट्रोल कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज बिजनेस की। बट उनको जो ओनर्स बन जाते हैं, जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो भी तो एक तरह से ओनर ही हुआ ना। तो उसको आप ओनर्स बोलते हो, ओके। आपकी बुक्स में भी, अकाउंट्स की बुक में सब जो लिखा रहेगा ओनर्स। बट वो रियल ओनर्स नहीं होते। रियल ओनर्स वो लोग रहते हैं जो कि क्वालिफाइड शेयर वगैरह लेकर बैठते हैं, जिसमें वोटिंग राइट्स रहते हैं। हर शेयर पे वोटिंग राइट नहीं होता है। तो यहाँ पर उनको डिविडेंड में से हिस्सा जरूर मिलता है। उनको अपन शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ओनर्स बोल सकते हो। बट दे हैव नो सच काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल नहीं करते। तो सेबी एक तरह से, बस आप अभी यहाँ पे इतना जान लीजिए, सेबी क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है ना। फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉड टर्म है, कैपिटल मार्केट ये सब आप आगे 12th में पढ़ोगे, ओके। तो अभी कैपिटल मार्केट को वो क्या करती है? कंट्रोल करती है, ओके। इसको क्यों बनाया गया है? इन्वेस्टर की रक्षा करने के लिए। जो लोग भी पैसा लगाते हैं ना कंपनी में, उनको रक्षा करने के लिए, उनके पैसा डूब नहीं जाए उसका ध्यान ध्यान रखती है वो, ठीक है। ये काम है उसका। नाउ द पब्लिक limited companies must submit all the relevant information with the SEBI before issuing its security in the capital market। क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए रहेगा तो आप शेयर बेचोगे तो किसके थ्रू आओगे? इसी कैपिटल मार्केट के थ्रू आओगे। और उनके लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो शेयर खरीदेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी सेबी को कि हम इतने शेयर्स इतने रुपए के इशू करने वाले हैं, इस प्राइस पे हम इशू करने वाले हैं। तो वो अगर अग्री करते हैं और आपको अलाउ कर देते हैं तो ही आप वो चीज़ कर सकते हो। और आपको कोई भी फैक्ट छुपाना नहीं है, ठीक है। जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह कोई भी जानकारी आपके पास है कंपनी की, तो आपको वैसी की वैसी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको लिख कर देनी है? सेबी को। फिर वो कन्विंस होगा तो ही आपको क्या करेगा? अलाउ करेगा कि आप ऐसा कर सकते हो। तो सेबी का अप्रूवल यहाँ पर ज़रूरी है, अदरवाइज आप पैसा अरेंज नहीं कर पाओगे। The second point is prospectus or statement in lieu of prospectus। तो prospectus क्या है? It is a kind of document which is issued by the limited company, है ना, so that the people will purchase the share by reading such a kind of prospectus। तो prospectus क्या होता है? It is a kind of advertisement। एक एडवर्टाइजमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करता है। जैसे कई बार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, पैम्पलेट आता है किसी स्कूल का, और उस पे बहुत अच्छी तरीके से स्कूल को दिखाया जाता है, स्कूल का प्लेग्राउंड, बसेस, फैसिलिटी। तो वो क्या होता है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो वो उसको प्रोस्पेक्टस, उसको पैम्पलेट बोल सकते हो। इट इज जस्ट अ शॉर्ट काइंड ऑफ पैम्पलेट जो आपकी एक्टिविटीज दिखाता है स्कूल की। और आप स्कूल जाते हो तो आपको क्या पकड़ा देते हैं कि ये सर हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन बाय दिस। कुछ रुपए में आप उसको खरीदते हो और आप उसके बारे में पढ़ते हो कि कौन कौन वहाँ पे टीचर्स हैं, हु आर दिस ओनर्स, और हु आर दिस, व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। तो ये प्रोस्पेक्टस ही होता है। तो कंपनी भी एक तरह से बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टस बनाती है। उसको पढ़ के लोग क्या इंटरेस्टेड हो जाते हैं पैसा लगाने के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप वो नहीं बना रहे हो तो उसकी जगह पे क्या, एक लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब उसकी जगह पर एक लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये क्या रहता है? उसमें क्या रहता है कि एक तरह से कंपनी जब भी एक एब्रिज फॉर्म, मतलब एक लेटर, जैसे कि प्रोस्पेक्टस तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, और जो चीज़ आप उसकी जगह पर आप दे रहे हो या फिर आप इन्फॉर्म कर रहे हो सेबी को, तो ये चीज़ कैसी हो जाती है? वो एक तरह से आप बता रहे हो कि हाँ हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। तो उसकी जगह पे या तो आप प्रोस्पेक्टस दे दो या फिर एक स्टेटमेंट लिख कर दे दो इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। का मतलब क्या है कि प्रोस्पेक्टस की जगह पर हम क्या इशू कर रहे हैं? एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि हम ऐसा काम करने वाले हैं कि हम शेयर्स लेकर आएंगे तब पब्लिक में बेचेंगे। वो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये करना भी ज़रूरी है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। बैंकर्स पैसा कलेक्ट करने के लिए, ब्रोकर शेयर बेचने के लिए, अंडरराइटर्स क्यों ज़रूरत है आपको इन प्रोफेशनल्स की? क्योंकि अगर शेयर परचेस नहीं किए लोगों ने तो बचा हुआ शेयर कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर। वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देगा और आपके पूरे के पूरे शेयर क्या बिक जाएंगे मार्केट में, सब्सक्राइब हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। सो इन ये जो आपका अंडरराइटर है, इसका कब रोल आता है? जब आपके सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं। तो ये गारंटी लेता है इस चीज़ की कि मैं आपके बचे हुए शेयर खरीद लूंगा। तो इसी को बोलते हैं अंडरराइटर, ओके। इस ये क्या लेता है? कमीशन। फ्री में नहीं करेगा, ही इज गोइंग टू टेक सम कमीशन विच इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव मोर नॉलेज ऑफ दिस अंडरराइटर ब्रोकर, इस मार्केट में क्या होता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस, आई विल टेल यू, ओके। नाउ ऑल दिस आर अपॉइंटेड। इसको अपॉइंट किया जाता है,
ठीक है। तो शेयर को खरीदना बेचना और ब्रोकर्स वगैरह इनको, और बैंकर्स को क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसको पैसा कलेक्ट करना रहेगा। नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? तो सी, एज पर द रूल ऑफ द सेबी, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जिस दिन जारी किया हमने, एडवर्टाइजमेंट किया मान लो, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग 90% ऑफ द इशूड अमाउंट आपके पास आ जाना चाहिए 120 दिन के अंदर। तो क्या होता है, जो शेयर रहते हैं जो अब आप बेचने के बारे में सोच रहे होते हैं, यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी प्लान टू इशू 10,000 शेयर, कंपनी कितने शेयर लाना चाहती है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 10,000 इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज कंपनी को चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ दिस देन मस्ट दे रिसीव एप्लीकेशन मिनिमम फॉर 90,000, सॉरी 9,000 शेयर और 90%, मतलब यहाँ पर कितना रोल है देखो, जितना भी पैसा आपने शेयर इशू किए उसका 90% लोग इंटरेस्टेड होना चाहिए कि वो शेयर इतने उनकी डिमांड आ जाए या फिर वो बिक जाए मार्केट में। 90,000 शेयर बिक जाते हैं तो आप बोलोगे मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया। अभी भी 10% किसी ने नहीं खरीदे, तो इसको कौन खरीदेगा, अंडर राइटर खरीद लेगा, ठीक है। उसको हम अंडर राइटिंग कमीशन पे कर देंगे, हमारा काम हो गया, पैसा आ गया, हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे फिर। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 90% होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, लाइक से फॉर एग्जाम्पल 80% ही होता है, 50% ही लोगों ने शेयर में इंटरेस्ट हुए या फिर इंटरेस्ट दिखाया, तो व्हाट डज इट मीन, अब उतना पैसा आया ही नहीं, इतना इनफ कैपिटल आपके पास आना ज़रूरी है, इतना पैसा उन लोगों से, बाकी अगर नहीं आता है, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो यू विल हैव टू रिटर्न दोस मनी, क्योंकि 50% का तो पैसा आ गया ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन नॉट कीप दैट मनी विथ यू, वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, और लौटाना पड़ेगा, ओके। सो यू विल हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये चीज़ वापस रिटर्न कर देनी है ना, लेके नहीं बैठना उन लोगों का पैसा। और जो प्रोस्पेक्टस का जो डेट है ना, उसे 120 दिन याद रखना, 130 डेज, सॉरी 130, अब ये चेंज हो गया है, पहले 120 डेज हुआ करता था, अब ये 130 डेज हो गया है, ठीक है। तो ये पे अपडेट हो चुका है, 130 डेज के अंदर आपको क्या है, प्रोस्पेक्टस जिस दिन इशू हुआ उस तारीख से, ओके, कितना 130 डेज, और ये कितना दिन का लिखा है ना यहाँ पे, 10 दिन के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी, एनएससी, बीएससी, ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया में। और भी हैं, लाइक देयर आर 21 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। बाकी जो सबसे ज़्यादा ऑपरेट होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यू कैन फाइंड दिस ऑन सीएनबीसी आवाज़ चैनल, उन पे चलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्या आपको लिस्ट करना पड़ता है अपने शेयर्स को। तो लिस्टिंग क्या होती है, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे आप चाहते हो कि आपका शेयर खरीदा या बेचा जाए, तो आपको लिस्टिंग करानी पड़ेगी, उनको भी लेटर लिख कर देना पड़ेगा कि हमारी कंपनी को आप लिस्ट कर लीजिए एनएससी पे। तो या तो आप एनएससी पे कर लो, चलेगा, वन किसी में भी, एनएससी या बीएससी में, या फिर इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इट बोथ दिस स्टॉक एक्सचेंजेस, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे आपको रजिस्टर करना है, देन यू कैन डू इट दैट एज वेल, वैसा भी कर सकते हैं। तो एक ही कंपनी का शेयर दोनों जगह भी खरीदा बेचा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लोग वहाँ पे आपके शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, और अगर वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो आपकी कंपनी को क्या करेगा, लिस्ट कर देगा। तो एक बार लिस्ट हो गई ना शेयर जिस स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जो ब्रोकर्स हैं वो बाय सेल करते रहेंगे आपके कंपनी का शेयर। तो जिसने भी आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, अगर वो कल को शेयर बेचना चाहता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में या फिर ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करके शेयर को बेच सकता है और पैसा लेके जा सकता है। तो ये एक फ़ायदा रहता है, क्योंकि कंपनी पैसा लौटाएगी नहीं, कंपनी ने तो इन्वेस्ट कर दिया ना पैसा, वो कंपनी तो बिजनेस चालू कर दिया है, बट आपके पास शेयर लेकर बैठे हो तो उसको बेचना चाहोगे ना। तो इसलिए लिक्विडिटी रखने के लिए कि कैश आपको आराम से मिल जाए, इसके लिए इसको यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। और जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे परचेस करेंगे शेयर को, उसके भाव ज़्यादा जाते हैं, शेयर के मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। और अगर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो शेयर का भाव नीचे आ जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है किस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर आपको यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वो एंटरटेन नहीं करेंगे, बोल देंगे कि मना कर देंगे कि नहीं आप इस पर रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो इन दैट आपको जो भी पैसा आपने लिया है जितने भी लोगों से, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, एप्लीकेशन मनी जो आपने लिए उनसे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो अप्लाई करते हैं ना शेयर, तो आपको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है। एक एप्लीकेशन के साथ में आपको पैसा भेजना पड़ता था बाय चेक।
है ना। तो ये चीज़ आपको वापस करनी पड़ेगी, उस पैसे को आप लेकर बैठ नहीं सकते। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट मतलब शेयर का आवंटन, यानी कि यू आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर्स टू द पर्सन जिनको अलॉट करा है शेयर हमने। अब जिस जिस बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा शेयर के लिए, किसी ने 10 शेयर के लिए, किसी ने 500 शेयर, 1000 शेयर, ऐसे अलग अलग लोग होंगे। और हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ उन्हीं को करेंगे जिन्होंने 1000 या उससे ज़्यादा के शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो जितने भी 500 थे, 500 शेयर्स वाले थे जो कि 1000 तक हम थे, तो उन्होंने भी तो पैसा बेच दिया ना, उनका पैसा भी तो अपने पास है, तो उसको रिटर्न कर देंगे। और जितने भी 1000 से अबव वाले हैं, तो हम उनको शेयर बांट देंगे, अलॉट कर देंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा हम उनसे लेंगे और जो दूसरा है उनको लौटा देना। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर में रजिस्ट्रार के पास में एक लिस्ट बना के देनी होती है कि ये लोग हैं, इनके एड्रेस है, इसके एड्रेस पे शेयर सर्टिफिकेट इनके पहुंच जाने चाहिए। तो वो उनको हम पहुंचा देंगे और वो शेयर्स लेकर बैठ सकते हैं, बाद में चाहे तो बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं। तो ये होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये रजिस्ट्रार को एक इंफॉर्मेशन लिस्ट बना के देनी पड़ती है कि किस किस को अपने शेयर बांटे हैं और कितने शेयर बांटे हैं, 1000, 2000, 5000, लाइक दैट यू विल हैव टू गिव इन रिटर्न टू दिस रजिस्ट्रार। ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जब आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी तो आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। कमेंसमेंट क्या होता है, इसको ज़्यादा डीप में मत पढ़ना। कमेंसमेंट लेटर का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ की शुरुआत कर सकते हो। प्राइवेट कब कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, इनकॉर्पोरेशन होते हैं, जहाँ रजिस्टर में नाम लिखा, रजिस्ट्रार ने वो बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर देगी। और ये कब कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड ये तब कर सकते हैं जब इनको ये कमेंसमेंट लेटर मिल जाए। तो ये कमेंसमेंट लेटर तक का वेट करते हैं, फिर ये अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आप कमेंस करते हो। कमेंस करना ही शुरुआत करना होता है। तो रिमेंबर दिस वर्ड। So after subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to register to issue सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, कंपनी ने रजिस्ट्रार को बोल दिया है तो कि अब हमको क्या कर दो, सब सारे काम हो गए, हमने सिक्योरिटी वगैरह रजिस्टर सब कर दिया और अब हमको सर्टिफिकेट दे दो कमेंसमेंट का, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन किस बात का, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन। तो क्या लिखना पड़ेगा, शेयर पेबल इन कैश फॉर ऑल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 90%, तो हमने रिसीव कर लिया। डिक्लेरेशन करके दे दो, बता दो कि हमने ये डिक्लेरेशन में दे रहे हैं कि इतना हो गया सब्सक्राइब। नाउ 90% सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद द डिक्लेरेशन ऑफ दैट एवरी डायरेक्टर हैड पेड द कैश ऑफ द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अप्लाई तो किया ही उन्होंने, तो एप्लीकेशन मनी तो आ ही गया, साथ ही साथ जब हमने उनको अलॉट किए तो अलॉटमेंट का पैसा भी हमने उनसे ले लिया है। ठीक है। तो ये जो शेयर है उसका जो फेस वैल्यू रहता है ना, उसमें अलॉटमेंट, आपका एप्लीकेशन मनी, ये सब रहता है। तो ऑल दिस थिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन अकाउंट्स। तो ये जो चीज़ है, पैसा आ जाता है तो कितना पैसा आ रहा है उसकी अकाउंटिंग होती है कि हाँ कितना पैसा हमने उसको आ गया है, तो उसकी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमको लिख कर देनी डिक्लेरेशन की, ऐसा हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खरीद लिए। द थर्ड पॉइंट इज द डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग विद द कंपनी। मतलब कोई पैसा हमारे पास पेंडिंग नहीं है, जिसको लौटाना था ना लौटा दिया पैसा। नाउ अ डिक्लेरेशन दैट द अबाउ रिक्वायरमेंट हैज बीन complied with, and this declaration it can be signed by the डायरेक्टर और द सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है वो साइन करे उस डिक्लेरेशन पे, और वो बोलेगा क्या कि हमने सारी की सारी कंप्लायंस, मतलब जो जो लॉ के अकॉर्डिंग था, वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दिया है। और अब हमको क्या है, उस पर साइन करके देना है। कौन साइन करेगा, या तो देखो डायरेक्टर्स करे या फिर कंपनी सेक्रेटरी साइन करके दे दे और उसको जमा कर दे। और एक बार वो जमा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर फिर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को और डिक्लेरेशन को। पहले तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था, उसने क्या दिया था, इनकॉर्पोरेशन लेटर। अब वो डिक्लेरेशन भी चेक कर रहा है जो उसने हमने उसको सबमिट किया है। ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, इफ ही सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, देन ही कैन विन। विन नहीं आएगा, ये विल होगा, दिस इज रॉन्ग रिटन ओवर हियर। ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो क्या होगा, कमेंसमेंट लेटर आपको दे देगा, लाइक दिस। ये इसका वो होता है, इस पे भी डेट लिखी रहती है, तो कमेंस कर सकते हो जिस डेट को भी इस पे मेंशन किया गया है, तो उस तारीख से आप अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी आर गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो वहाँ पे मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है ये भी हम जानेंगे, और प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी हम जानेंगे। वैसे थोड़ी बात उसके ऊपर कर लिए। सो टिल देन, थैंक यू।